As I said last time, today will be a technical analysis day, and today the topic we are going to take up is the basic of all trendline breakout. So I will share my screen of technical analysis. Basically, yeah, is the screen visible? Yes, Yeah. So basically, first I will explain what this platform is. It is a charting platform where the charts of every stock from Indian stocks, say Reliance, HDFC, to US stocks, say Apple and Tesla. So their charts are uploaded here on live stream basis, like real time basis. So here it is a free software, free trading website, which is tradingview.com, and I use this. I have a paid version of it, and it is the most effective free charting software that I have ever encountered. So I recommend this platform for everyone. So like first we will understand what trading is. What technical analysis is. Now everyone know about fundamental analysis, like understanding the balance sheet, cash flow, and all those statements of a company. But when we come to technical analysis, nothing of that sort is used. It is just the plotting of open, high, close, low of a stock on a continuous basis, on a daily basis. Like if we see here, if we pick up any candles, let's say this candle, it is of second March, it is of April. The chart is monthly. In April, when we see the Nifty opened at 10,151.65, made a high of 10,759, a low of 10,111, and a close of 10,739. So this one candle is known as this one bar is known as a candlestick. So like this, we have for May month, then we have June, then we have July, then we have August, then we have September, and as per trail, and we can see the Nifty is moving up, down. Like see, it's down, up, and we use this chart to predict whether it will go up or down. When we are predicting, there are many indicators, oscillators, or various patterns that we are going to study slowly in future. So if we come to basic trend line breakout, I will switch this chart to a daily chart. This is a daily chart of Nifty, and we can see the massive fall we had yesterday. It's of 4%, about 500 to 600 points. And after long, Nifty has fallen this much. Now, what's a trend line? Trend line is basically any single line like this. I'm drawing from this bottom to this bottom. This is a trend line. It's a trend line. When we see this Nifty made a bottom here, then made a bottom here. And when I drew this line, it made a bottom here. It didn't break it, acting as a support. And it has come here again. It will act as a support. It's a trend line. If we say like this, we are drawing a horizontal line. This it's a trend line. Any line is a trend line basically, and we use this trend line. हम इन trend lines को use करते हैं effective trading के लिए कि इसको तोड़ा तो ऊपर जाएगा स्टॉक या नीचे जाएगा स्टॉक, किधर जाएगा, किधर रुकेगा, वो हमारी स्टडी हो गई, हमारी इंडिविजुअल बंदे की स्टडी हो गई. जो जितना ज्यादा एक पैटर्न को स्टडी करेगा उतना ज्यादा इफेक्टिवली बोल पाएगा कि तोड़ेगा कि नहीं, और तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कि नहीं. तो ट्रेंड लाइन दो टाइप की होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक स्लैंटिंग. जैसे मैंने ये दिखाई थी, ये स्लैंटिंग थी, और ये दिखाई थी, ये हॉरिजॉन्टल थी. ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट को डिमार्केट करते हैं या एक रेजिस्टेंस को. अब वो हमें से देखना है कि कौन सी सपोर्ट या कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है. ये सिर्फ एक ही चीज से आएगी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे, वैसे वैसे आप जज करते रहोगे स्टॉक. अब मैं अगर पिछले बताऊं पास्ट हिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था रिलायंस का ब्रेकआउट. मैं अभी जस्ट अ सेकंड दिखाता हूँ. व्हेन वी सी दिस, जस्ट अ सेकंड. व्हेन वी सी रिलायंस का ब्रेकआउट on a monthly chart, this period, when we see from 2007, the beginning of the financial crisis, till 2017, about 10 years,
Reliance was trading between 350 and 550. In this, it gave a significant trend line breakout. I will show here. ये ब्रेकआउट दिया था रिलायंस ने इस महीने में, फरवरी 2017, एंड जितने जनों ने इधर लिया दे आर इन ह्यूज प्रॉफिट्स राइट नाउ, एज हम देख सकते हैं। हमने देखा एक ये टॉप थी, एक ये टॉप थी, एक ये टॉप थी, एक ये, एंड उसको जब तोड़ा उसने तो रिलायंस वॉज अनस्टॉपेबल। हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न रिलायंस ने दिया अबाउट 300%। लाइक आपने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे आज आपके 400 रुपीज हो गए। तो ये था एक बेसिक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो हमने रिलायंस में देखा है। अभी अगर हम एक दूसरे, ये था स्लैंटिंग ब्रेकआउट, हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट की बात करें तो जैसे मैं ये दिखाता हूँ आईसीआईसीआई बैंक में, ये हमारा डेली चार्ट पे देखें अगर हम, तो ये जब ये कोरोना क्रैश आया, अभी हम इधर हैं, ठीक है, अभी हम इधर है, लेट्स से वी आर ऑन 17 अप्रैल 2020। तो ये आईसीआईसीआई का ऑल टाइम हाई था। बेसिकली जब ये हाई बना उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग इन कोरोना क्राइसिस। सो हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे इधर, ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस कि दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट वी विल फेस इन टर्म्स जब ये स्टॉक बढ़ेगा। तो जब हम देख सकते हैं आगे जाते हैं तो यहाँ पे इट फेस्ड रेजिस्टेंस, एक बार गया नीचे आया, देन सेकेंड टाइम गया, देन नीचे आया, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, एंड जब इसने तोड़ा देन वी कैन से यस वी कैन बाय ओवर हियर। अब इसमें ये फॉल्स ब्रेकआउट था। ऑन 13th Jan इट क्लोज्ड अबव इट, बट देन अगेन वो उसके नीचे आ गया। तो ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल, जब दूसरी कैंडल ऊपर बने देन ओनली बाय। अब हम इसमें बात करें तो ये थी हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट की, आप क्लियरली देख सकते हो ये पिछला ऑल टाइम हाई था, ये स्टॉक बढ़ा, इसको छुआ, नीचे आया, एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आर द मोस्ट easiest and considerably significant टेक्निकल चार्टिंग टूल। तो ये इन चीजों को इग्नोर नहीं करना बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। अभी एक ये इधर देखे हम आईसीआईसीआई में, तो ये भी एक है, ये इसने इस लाइन को ट्रू रहा, यहाँ से बनाया, देन इधर एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट। तो इवन स्मॉलेस्ट ट्रेंड लाइन कैन बी मोर सिग्निफिकेंट। अब इसमें एक कंट्रोवर्शियल बात आती है, काफी लोग बोलते हैं कि लेट्स सी हियर, काफी लोग बोलते हैं कि सपोज मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी यहाँ से यहाँ तक, तो दे विल से कि ये टॉप थी 2007 की, ये थी 2015 की, इट इज अबाउट 10 years ऑफ टाइम। तो ये काफी सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन है, पर एक्चुअली इट्स अपोजिट। जितनी पुरानी ट्रेंड लाइन हो द लीस्ट सिग्निफिकेंट इट इज। आप अगर 2020 की कोई ट्रेंड लाइन बनाओगे ऐसी तो इट विल बी मोर इफेक्टिव देन दिस। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट, वी फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वी रिमेंबर ओनली द नियर फ्यूचर। ये एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे। अब जैसे अगर मैं बात करूं रियल अभी करंट एग्जांपल में कोई मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है, इसमें बना है ये पैटर्न। मैं अभी दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, ये बना है, सी, ये एक टॉप थी, ये एक टॉप थी, एंड नाउ डिक्सन हैज जस्ट कम ओवर हियर एंड इट्स स्टेइंग अबव इट। ब्रेकआउट दिया, रुका, ब्रेकआउट, देन रुका रुका, इट ब्रोक डाउन, नीचे चला गया, बट फिर नेक्स्ट डे केम अप। तो दिस इज अ गुड बाय पॉइंट, वी कैन से कि कंसिडरेबली, बिकॉज इधर ये इट इज हियर सिंस अ होल मंथ, नियरली अ होल मंथ, 11 Feb से लेके आज तक। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, ये वापस ऊपर जाएगा ऑन टेक्निकल बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक एबीए का एग्जांपल है। एंड दूसरा एग्जांपल दिखाऊं तो एचडीएफसी, एचडीएफसी में ये लाइन बनी है दिस, ये भी इधर आया है, बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे आया है। तो हाँ, वी कैन से कि इट विल गो अप, पर रुकना नेक्स्ट कैंडल के लिए, बिकॉज इफ द नेक्स्ट कैंडल फॉल्स बिलो इट
देन हमारा सिग्नल ब्रेक डाउन हो जाएगा कि इसने नीचे तोड़ दिया है। लेकिन अगर ऊपर बने देन वी कैन से हाँ ये सपोर्ट ले रही है, जैसे जस्ट हियर यहाँ पे क्लोज हुई, देन नेक्स्ट डे इट वेंट अप। नाउ वी कैन से वी कैन बाय एट दिस कैंडल एंड देन हमें एक कंसिडरेबल प्रॉफिट मिला ओवर नेक्स्ट 2 वीक। तो ये एक बेसिक ट्रेंड लाइन का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। अब अगर मैं इसमें एक और ट्रेंड लाइन दिखाऊं, तो जैसे अभी हम इधर है, ठीक है, ये इधर इसने हाई बनाया अपना ये इन दिस पीरियड हाई, एंड हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी कि इट टच्ड इट, केम डाउन। अब देन अगेन जब इसने ब्रेकआउट दिया देन वी विल बाय एट दिस कैंडल एंड इट केम डाउन, तो लोग सोचेंगे यार ये तो लॉस हो रहा है मेरे को, पर इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट रिट्रेस, मतलब कि स्टॉक जहां गया, जहां जिसको तोड़ा, जिस पॉइंट को तोड़ा, बिल्कुल वहीं आके रुका। तो ये एक फिनोमिना है जो आता है हर स्टॉक में। इसने ब्रेकआउट दिया, देन इट केम टू दैट लेवल, उसने वो लाइन को छूने आया और आता ही आता है, देन इट वेंट अप। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो अगर आप बुलिश हो इस स्टॉक पे तो इसी कैंडल पे ले लो। काफी लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, वो इस कैंडल पे लेंगे, तो दे गेट अ फ्यू पॉइंट्स एक्स्ट्रा। बट वाई? बिकॉज दे वेटेड, दे हैड अ पेशेंस। सो टेक्निकल एनालिसिस में पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ब्रेकआउट पे ले सकते थे, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, पर अगर आप रुको तो अगर हम देखें इधर, द प्राइस इज 1496 एंड हियर इट इज 1488, तो 100 पॉइंट्स, लाइक इट इज सिग्निफिकेंट, 100 पॉइंट्स वेरी सिग्निफिकेंट, हमें ज्यादा मिलते, एंड देन इट वेंट अप। तो ट्रेंड लाइन एंड रिट्रेसमेंट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टॉक रिट्रेस करता है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा टाटा केमिकल का। टाटा केमिकल एक ये जो भागी है इधर, दिस रन, मैं इसमें ये मंथली चार्ट में दिखाऊंगा। दिस दीज टू टॉप्स, अप्रैल 2018 एंड जनवरी 2020, ये 2 ईयर का मल्टी ईयर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया 344 पे, एंड टुडे इट इज एट 739 इन जस्ट 4 मंथ्स। वी डबल्ड आवर मनी, हमारा पैसा डबल हो गया इन जस्ट 4 मंथ्स। ये इतना सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है बिकॉज इट गेव अ कंसोलिडेशन ऑफ 3 years एंड देन गेव अ ब्रेकआउट। तो कंसोलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर अब ये स्टॉक मैंने क्यों चूज करा, इसके पीछे एक सिग्निफिकेंट रीजन है। ये आप नीचे देखोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इस स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। देखोगे आप इधर देखिए, ये लाइन को छुआ एंड देन दिस कैंडल हाई वॉल्यूम, देन स्लाइटली लो एंड देन अगेन हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है? अब अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो मैं समझाना चाहूंगा कन्विक्शन, कि हाँ लोगों को लगा ब्रेकआउट आया, दे बाय स्टार्टेड बाइंग इट, खरीदते गए तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड। तो ये था टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों में कन्विक्शन आया तो उन्होंने खरीदा, खरीदा तो वॉल्यूम बढ़ा। पर अगर मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं वॉल्यूम क्यों देखनी चाहिए, बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी आई। तो लिक्विडिटी क्यों आई? जिस स्टॉक में सपोज हर रोज 100 करोड़ का ही माल ट्रेड होता था, ओनली ओनली 100 करोड़ वैल्यू स्टॉक्स वर ट्रेडेड, उसमें अचानक 1000 करोड़ का ट्रेड होने लगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, लिक्विडिटी इंक्रीज हुई, उस स्टॉक में पैसा ज्यादा आने लगा। एंड हमने इस साल देखा है, लास्ट ईयर लिक्विडिटी इज द फैक्टर फॉर राइजिंग मार्केट। स्टॉक में लिक्विडिटी आई एंड इट स्टार्टेड रनिंग। टाटा केमिकल जैसा टाटा ग्रुप का इतना बड़ा स्टॉक ऐसे भाग रहा है, ये सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से, बिकॉज लिक्विडिटी आई इस स्टॉक में जब इसने ब्रेकआउट दिया। और इससे आप सोच रहे होगे कि मैंने फंडामेंटल क्यों बोला। टेक्निकल एनालिसिस कैन बी रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप उसे लॉजिकली सोचो कि वॉल्यूम आई, लिक्विडिटी आई, इसलिए आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इसमें बात करें इसी स्टॉक में, तो जैसे ये अभी इधर इट इट लुक्स लाइक कि ये अटक रहा है, दिस ट्रेंड लाइन पे ये अटक रहा है, इट हैजंट क्लोज्ड अप सिंस 2 days। तो हाँ वी कैन से कि टाटा केमिकल्स अब यहाँ पे अटकेगा, सो नॉट अ गुड प्लेस टू एंटर।
कब एंटर करोगे? जब ये इसको ब्रेकआउट देगा। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेंड लाइन का है। ये सबसे सिंपल है, इसको सबसे इजीली लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड इट इज कंसिडरेबली इफेक्टिव। अभी अगर मैं कोई रैंडमली स्टॉक देखूं, आईटीसी, लाइक आजकल आईटीसी काफी लोगों को पसंद है। आई डोंट नो, मतलब मेरे को फ्रैंकली पर्सनली बोलो इतना कन्विक्शन नहीं है स्टॉक पे। तो इसने लाइन ब्रेकआउट दिया था इधर, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था इसने इधर, स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इट स्टार्टेड रनिंग, पहले यहाँ पे इसको छुआ, नीचे आया, देन अगेन ऊपर गया, पर इधर रिट्रेसमेंट नहीं आया। तो रिट्रेसमेंट इज नॉट कंपल्सरी। 80-90% ऑफ टाइम रिट्रेसमेंट आता है, बट 100% टाइम नहीं आता। देन इट स्टार्टेड, ये ऊपर अप ट्रेंड में चालू हो गया एंड काफी स्टॉक्स ब्रेक डाउन भी देते हैं। लाइक अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं, कोल इंडिया का आप चार्ट देखोगे तो इट्स डाउन ट्रेंड चार्ट ओनली। तो इसने ब्रेक डाउन कहाँ दिया? इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिए। लाइक अगर मैं इधर बात करूं, वी थॉट ओवर हियर कि जस्ट अ सेकंड हियर कि इसने ट्रिपल टॉप के ऊपर गया है, सो पीपल स्टार्टेड बाइंग ओवर हियर। पर जब आप इसका आगे का देखोगे तो वापस नीचे, वापस नीचे, वापस नीचे। सो एंटर इन गुड स्टॉक्स ओनली, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड दैट इज नेचुरल। जो अच्छा है वो बढ़ता है, जो बेकार है वो गिरता है। कोल इंडिया को ही देख लो, आप इसका मंथली चार्ट देखो तो इट्स अ डाउन ट्रेंड स्टॉक। अब इसमें ब्रेकडाउन की बात करूँ तो हियर देयर वाज अ मेजर ब्रेकडाउन। ये इस कैंडल पे इसने अपने पिछले लो को नीचे ब्रेक डाउन दिया, देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। तो ब्रेकडाउन्स भी आते हैं इसमें, ब्रेकआउट्स भी आते हैं। हमें बस ये देखना है हम कौन से स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। अभी मैं अगर इसका बोलूँ, इन्फो एज, नौकरी.com, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसमें आया था जैसे ये ब्रेकआउट आया, ये कैंडल एंड इट गेव अ ब्रेकआउट। इट स्टूड देयर फॉर 2 months एंड देन अगेन अप। एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट आपको काफी स्टॉक्स में दिखेंगे एंड काफी में कन्विक्शन भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ पावर ग्रिड की, तो ये काफी स्लो मूविंग स्टॉक है। आप देखोगे ये एक जगह ही पड़ा रहता है। इट्स हियर सिंस 2017, 223 पे था, 209, 211 एंड अगेन इट्स एट 2114। तो ये स्टॉक इतने समय से यहाँ पड़ा हुआ है तो देयर मस्ट बी सम रीजन, वो रीजन करना जरूरी है। पर टेक्निकल बेट के हिसाब से देखो तो हियर इट इज वेरी गुड। ये इसने ब्रेकआउट दिया है, मंथली ब्रेकआउट दिया है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। बट कितना होल्ड करेगा ये ब्रेकआउट, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम और एन एक्सपीरियंस। अगर आप करते गए इन्वेस्ट इसी चीज के ऊपर, देन आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इधर इसने ब्रेकआउट दिया है पर इट विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि ये पैरामीटर है। इधर इसने ब्रेकआउट दिया तो इट विल बी अ प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट। तो आपको आइडिया लगेगा। एंड एज आप जानते हो कि अगर ये फुल प्रूफ होता, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फुल प्रूफ होता, तो सारे जने ये क्यों नहीं कर रहे होते? लोग इचिमोको पे क्यों जाते, बॉलिंजर बैंड पे क्यों जाते, आरएसआई पे क्यों जाते, मैकडी पे क्यों जाते? नहीं है ना फुल प्रूफ, नथिंग इज फुल प्रूफ। तो जो 10 में से 6 राइट है, द पर्सन हु आइडेंटिफाइज द 4 रॉन्ग, कि जो वो 4 रॉन्ग है वो पहचान पाए, ही मेक्स द डिफरेंस इन द मार्केट। वो अलग, वो बंदा इसमें सक्सेसफुल रहता है। बिकॉज जो 6 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ही विल टेक दोज ट्रेड, बट वो जो 4 लॉस वाले ट्रेड है उसमें से वो 2 में बच जाएगा, एक में बच जाएगा दूसरों के बजाय। तो देयर ही विल मेक अ डिफरेंस। वो आपको मिलेगा टाइम से, जैसे जैसे आप टाइम करते गए, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते गए। अब इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कोई भी स्टॉक के बारे में रेफरेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं कि कोई मैं स्टॉक देखूं, कुछ भी हो। सो इफ यू हैव एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क।
ओके, सो अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है, हाउ इट्स नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल नहीं है तो मार्केट क्यों होल्ड ट्रू करता है इसे? लाइक ठीक है, मैंने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर गया तो उससे ऊपर जाएगा क्यों? गारंटी क्या है उसकी? खैर, इस बात का कोई सच नहीं है। नो वन इज एवर एबल टू प्रूव कि टेक्निकल एनालिसिस सच है। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन अकरेंस, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में ये पैटर्न बना तब उसने परफॉर्म करा, तो जब फ्यूचर में पैटर्न बनेगा तो भी ये परफॉर्म करेगा। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन दैट ओनली, जो पास्ट में हुआ वो अब होगा। तो लोग इसी अजम्पशन पे इसमें ट्रेड करते हैं एंड मेनी आर प्रॉफिटेबल, काफी प्रॉफिट भी कमाते हैं। एंड टेक्निकल एनालिसिस इज इक्वली गुड एज फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आप उसे अच्छे से समझ लो। जैसे पावर ग्रिड अभी इतना गिरा, तो एक ही सपोर्ट लेवल दिख रही है इसमें मुझे, ये इट केम डाउन टिल हियर ऑन इंट्राडे बेसिस, वेंट अप एंड इज अभी इधर है। सो हाँ, ये स्टॉक में रिट्रेसमेंट भी आ गया है, तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू बाय। बट क्या ये प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा नहीं देगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग दैट। अब अगर मैं इसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँ, तो हम लाइन बना रहे हैं, लाइन क्या है? लीनियर है। हमने एक ये पॉइंट लिया, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट भी है, इसका एक वाई कोऑर्डिनेट भी है। ये दूसरा पॉइंट है, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट मीनिंग टाइम, कि किस डेट पे है। वाई कोऑर्डिनेट मीनिंग प्राइस, कि क्या प्राइस पे वो बनी है। जैसे ही हमें दो पॉइंट मिले, हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई। तो जैसे ही कोई पॉइंट आता है वेयर द इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड, लेट्स से हियर कि जब 26 फरवरी का मैंने इक्वेशन में पॉइंट डाला तो प्राइस कम्स एट 211, तो यहाँ पे स्टॉक विल फेस अ सपोर्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये एक लाइन को ट्रू कर रहा है, जो हमने लीनियर लाइन बनाया तो ट्रू कर रहा है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस कैन बी कॉल्ड एज मैथमेटिक्स। अभी एक बहुत फेमस इंसान है, जिम सिमंस। उसने आज तक का हाईएस्ट सीएजीआर रिकॉर्ड करा है, 66% सीएजीआर कंटिन्यूअसली, एंड नो वन इज नियर हिम। He was a mathematician and he did good in this technical analysis because it is part math. आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखोगे, इट इज मैथ्स। ट्रेंड लाइन देखोगे, इट इज टू एन एक्सटेंट इनडायरेक्टली मैथ्स। वॉल्यूम, इट इज मैथमेटिक्स, कि आपके पास नंबर्स का गेम है। बेसिकली आप रिट्रेसमेंट देखोगे, इट इज मैथ्स। 50% रिट्रेस कर गया, 50% क्या मैथमेटिक्स, 33% रिट्रेसमेंट कर गया। तो वी कैन नॉट से कि टेक्निकल एनालिसिस डजंट हैव एनी फंडामेंटल। दैट इज टोटली रॉन्ग। इट हैज, जस्ट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हाउ ही सीज इट। अभी मैं एक और स्टॉक दिखाऊं, अडानी एंटरप्राइजेस। काफी लोगों को ये नहीं पसंद बिकॉज इट हैज ह्यूज डेट। काफी डेट है इसके पास, बहुत डेट है। तो इधर एक मेरे को ये दिख रहा है, जैसे 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 मैं इधर करूं, तो ये ऑल टाइम हाई था इसका, टिल हियर, till the time the stock was at 16 June. It was all time high. It started rising, and then it broke above it. I still remember that day, it was around 13 to 14% gain. Then it retraced till here. It stayed from 25 August to 28 September. एक month का consolidation दिया, which काफी significant consolidation. And then it started rising, and today it is at 833, still rising. ये पॉइंट है 275। आपने आधे साल में अपना पैसा 2 गुना से ज्यादा कर दिया, 3 गुना से ज्यादा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकआउट आया, एंड आप देख सकते हो हाई वॉल्यूम मीनिंग लिक्विडिटी आई। अगर आप फंडामेंटली देखना चाहो तो बहुत वॉल्यूम आई, स्टॉक लिक्विड हो गया, उसमें बहुत सारा कैश इनफ्लो हो रहा है। कैश इनफ्लो हो रहा है तो बायर्स बढ़ रहे हैं तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है। यू कैन लुक इट एट फंडामेंटल और टेक्निकल, जिस तरह आपको ज्यादा अच्छा लगे स्टॉक देखना। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस इज दैट। एंड इसमें लाइक जस्ट अगर मैं इधर दिखाऊं 16 अगस्त से, तो इसने एक ये मंथली ब्रेकआउट दिया था 10 जनवरी के टॉप ऑफ 2018,
अगस्त की टॉप ऑफ 2018, ये दो टॉप्स का ब्रेकआउट इसने दिया दिसंबर में। एट व्हाट पॉइंट? 450। ये वापस आप खरीद सकते थे यहाँ पे, एंड नाउ इट्स एट 800। आपका पैसा भी डबल हो गया था इन जस्ट 3 मंथ्स। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत फास्ट पैसा मिलेगा, लॉस भी हो सकता है फास्ट इफ यू आर इन दिस मंथ। आपका पैसा 20% टूट जाएगा एक मंथ में। तो बात वही है, आपको पैसा मिलेगा भी ज्यादा, आपका जाएगा भी ज्यादा। तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं दिखाऊं इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में मैं अगर दिखाना चाहूँ, ये बनी भी है पहले से ट्रेंड लाइन, दिस टॉप, इसके ऊपर ये गया, केम डाउन, नॉट 100% रिट्रेस्ड बट ठीक है, इट इज अ सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट, देन वेंट अगेन। अभी ये इस सपोर्ट पे खड़ा है, इट्स हियर, you can see breakout, then came to this support and then again to this support। अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, हमें नेक्स्ट कैंडल की वेट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इसने यहाँ पे एक और, अगर आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखना है तो इधर ये इसने ब्रेकआउट दिया था। यू कैन सी परफेक्ट ब्रेकआउट, परफेक्ट रिट्रेसमेंट, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस ब्रेकआउट। कब का है ये? 16 अगस्त, 6 अगस्त, अभी का ही है, आधे साल पहले का ही है। तो आपको आराम से इतने मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे ब्रेकआउट्स, आपको बस देखना पड़ेगा। एक ये मैंने इसमें ट्रेड करा, मिंडा इंडस्ट्रीज, इसका ये ब्रेकआउट था, ये आप देख सकते हैं, दिसंबर 2017, जुलाई 2018, जनवरी 2020, दिसंबर 2020। इसके ऊपर वी कैन बाय एट दिस कैंडल 21 जन, क्योंकि ये ऊपर ब्रेकआउट देके वहीं पे ही रुका अराउंड 450, एंड अभी ये है 566। कितना परसेंट रिटर्न मिला? अगर आप देखना चाहें तो 23% रिटर्न। कितने टाइम में? दिसंबर, जस्ट 2 मंथ, सॉरी 1.5 मंथ। एंड इसमें दूसरा ब्रेकआउट भी था, विच इज अ मोर सिग्निफिकेंट वन, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ये इसका ऑल टाइम हाई था, इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया, देन केम डाउन, रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन अप। ये आपको देखना पड़ेगा। आपको जितनी ज्यादा स्टडी करोगे, जितना ज्यादा देखोगे, उतना आपको आइडिया लगेगा क्या ब्रेकआउट है, क्या ब्रेकआउट नहीं है। अभी इसमें एक दूसरी चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी अगर आप देखो, जिन्होंने यहाँ पे देखा, उन्हें लगा रिट्रेस करेगा, वो यहीं पे ही आया, उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि अभी रिट्रेस करेगा, इसने रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं, पर वो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि उनकी पार्ट स्टडी थी, उन्होंने पूरा स्टडी नहीं करा। अगर उन्होंने ये ऑल टाइम हाई वाली बनाई होती लाइन, तो उन्हें दिखता कि इसने डबल ब्रेकआउट दिया है एंड रिट्रेस्ड टू द नियरेस्ट सपोर्ट। इसने नियरेस्ट सपोर्ट को ही वो ट्रू करेगा, एंड देन वहां से ऊपर गया। तो दे कुड हैव एंटर्ड हियर एंड दे कुड हैव मेड प्रॉफिट। तो आप एक चीज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ स्टॉक में, क्या मेरी स्टडी ठीक है अकॉर्डिंग टू मी। तभी आपको आइडिया लगेगा कि क्या ट्रेड लेना अच्छा है, क्या ट्रेड लेना अच्छा नहीं है। अभी मैं एक और दिखाऊं, ओरिएंटल एरोमेटिक्स। ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। ये पहले जाना जाता था कैंपर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के नाम से। ये काफी बड़ी कंपनी थी पहले, एंड जस्ट अ सेकेंड, इसने ब्रेकआउट दिया था इधर मार्च के महीने के बाद, ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। एक ये ब्रेकआउट था इसका, सॉरी, एक ये ब्रेकआउट था ऑल टाइम हाई का, एंड देन सेकेंड ब्रेकआउट था ये वाला स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का। इसने डबल ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ से गया ऊपर, देन केम डाउन, रेजिस्टेंस आई, देन ब्रोक अप, एंड देन अगेन रिट्रेसमेंट दिया इसने, परफेक्ट रिट्रेसमेंट है, डबल रिट्रेसमेंट है, एंड टुडे इट इज एट 597। तब था ये 316। कितने महीने? हाफ अ ईयर। हाफ अ ईयर में यू डबल योर मनी। इससे अच्छा पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर कुछ भी कर लो, इससे अच्छा पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा इफ यू आर स्टडिंग इट इनफ। लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट रिस्की है,
है रिस्की, पर अगर आप यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन इट इज नॉट रिस्की। अगर आपको पता है आप क्या करो तो रिस्की नहीं है। लोगों ने बहुत लोगों का पैसा बहुत डुबा भी है। एक ये स्टॉक है जिसकी वजह से बहुत डूबा है लोगों का पैसा, सुजलॉन। इसका मंथली चार्ट देखो, 2007 के 8 में 2000 पे था एंड टुडे इट इज एट जस्ट 6 रुपीज। ये जो गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, दिस इज अ, क्योंकि लोगों की बेट गलत रही। इतनी अच्छी कंपनी थी, विंड एनर्जी की टरबाइन, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हु वुडेंट हैव इन्वेस्टेड, किसने इन्वेस्ट नहीं करा होगा। पर बात वही है, कंपनी के फंडामेंटल्स बिगड़े, 2007 का क्रैश नहीं झेल पाई, 44 पे आई एंड इधर आ गई। देखने में इतनी बड़ी फॉल नहीं लगती है क्योंकि लॉगरिदमिक चार्ट है। मैं रेगुलर करूँ तो देखो, द कंपनी इज फिनिश्ड। क्या महीने में 2000 पे खुली है एंड क्लोज्ड एट 300। ये महीने में कंपनी खत्म हो गई। तो लोग पैसा खोते भी है इसमें, लोग पैसा कमाते भी है, डिपेंड अपॉन योर स्टडी। अगर मैं बाहर का एग्जांपल दिखाऊं तो एक ये कंपनी है स्क्वायर इंक। इसमें मैंने ये ब्रेकआउट देखा था जब मैं अराउंड अ ईयर बैक। ये आफ्टर क्रैश इसने ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया एंड एक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, गिव अ परफेक्ट रिट्रेसमेंट एट $83 एंड नाउ इज एट $230। बेसिकली आप इतने आराम से स्टडी कर सकते हो, आपको पैसे कमाने के बहुत मौके मिलेंगे इसमें। ये तो आप सभी जानते हो, एप्पल, इससे ये अलग स्टॉक है। इसमें ब्रेकआउट यहाँ पे आया, ये प्री क्रैश प्राइस को इसने तोड़ा, रिट्रेस करा $83 पे एंड नाउ इज एट $121। सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है। आप अगर HDFC बैंक की बात करो देन हियर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया इसने, दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड देन इट केम अप एंड देन नाउ इज हियर। इसमें ये मैं पिछली वाली लाइन वापस बनाना चाहूंगा। ये आप देखो टेक्निकली दिस साइड, ये इसमें एक चार्टिंग पैटर्न बना है एंड देन इट ब्रोक डाउन, गेव अ रिट्रेसमेंट। कितने लोगों ने यहाँ पे देख के शॉर्ट करा होगा कि ये नीचे आया, रिट्रेसमेंट दिया, अब नीचे जाएगा, पर कहाँ गया स्टॉक? ऊपर। तो स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो नहीं लॉस उठाओगे ज्यादा। बात वही है, फॉल्स ब्रेकआउट आएंगे, हर जगह फॉल्स ब्रेकआउट आएंगे, लेकिन आपको बैठ रहना पड़ेगा। अभी ये एक ये रहा फॉल्स ब्रेकआउट, ये इसने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट करा, पीपल वुड हैव बॉट ऑन दिस कैंडल, पर देखो वापस नीचे, अब वापस नीचे आ गया। क्या पता है फॉल्स ब्रेकआउट है, क्या पता ऊपर जाएगा, टाइम विल टेल। आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, नीचे बनती है ऊपर बनती है। तो ये कोई इजी चीज नहीं है आजकल। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लास्ट ईयर मार्केट वाज एक्सेप्शनल। आप निफ्टी को देखो, ये पिछले एक साल में 7,800 से 14,000, नियरली डबल्ड। प्री क्रैश प्राइस से देखो 12,000 से 14,000, 20% गेन। इतना ऊपर जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है। अभी तक आप देखोगे कितने जने आए हैं ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मैं भी इसी साल जुड़ा हूँ, मैं भी बोलूंगा कि मैं भी अभी न्यू हूँ इस फील्ड में। इतने जुड़े हैं बिकॉज वॉट एवर दे आर बाइंग दे आर गेटिंग प्रॉफिट। मैं ये दिखाना चाहूंगा आज ₹1.70 पे है। ये ऑल्सो ये भी बढ़ी, ये देखो अप्रैल 2020 से ये भी बढ़ी। इसमें भी लोगों ने पैसा कमाया बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी थी। तो खत्म से खत्म कंपनी भी, बिल्कुल बेकार कंपनी भी इस समय बढ़ रही है। सुजलॉन देख लो, तो अभी इज द, ये चाहे ये फरवरी में ₹2.40 या ₹5.80, ये भी बढ़ी, जबकि ये तो क्लियर डाउन ट्रेंड स्टॉक था, इस समय बढ़ी। तो अभी चैलेंजिंग वक्त आ रहा है, अभी इन्वेस्ट विथ कॉशन, बिकॉज अब ये सिचुएशन चेंज हो रही है, अभी चेंज होने वाली है। तो ब्रेकआउट विल नॉट होल्ड ट्रू ऑल द टाइम। एक ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया, मैंने अभी देखा था अराउंड अ कपल ऑफ डेज बैक, कोल इंडिया में।
इसने ये ब्रेकआउट दिया, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, चार टॉप एंड देन गेव ब्रेकआउट। इसने ये ट्राइंगल पैटर्न बनाया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट। पर देखते कितना होल्ड ट्रू करता है। दैट टाइम विल टेल। डबल टॉप पैटर्न, उसके ऊपर ब्रेकआउट। ये बहुत पॉजिटिव है कोल इंडिया, बट देखना पड़ेगा कितना पॉजिटिव है। ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, इट्स अ गुड बेट, टेक्निकल बेट। बट कोल इंडिया ने पास्ट में बहुत फॉल्स ब्रेकआउट्स दिए हैं। एक यही देख लो, ये इसने ये ब्रेकआउट दिया, देन अगेन स्टार्टेड फॉलिंग। इसने यहाँ पे एक ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया, देन अगेन स्टार्टेड फॉलिंग। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस एज अ क्लियर ब्रेकआउट, बिकॉज आपको स्टॉक की हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। अभी लोगों को लगेगा कि अच्छा है, पर दिमाग में सोचो कि अगर मैं ये स्टॉक में नहीं लगाऊं तो क्या मैं पैसा नहीं कमाऊंगा? देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स अवेलेबल। ये आखिरी बेट नहीं है, ये आपकी लाइफ की आखिरी बेट नहीं है। आप रुक सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इन्वेस्ट करो। बिकॉज जहां भी आपका चांस है कि मेरे को दिख रहा है इस स्टॉक ने पिछले 10 में से 9 फॉल्स ब्रेकआउट दिए हैं, तो क्या मैं उस 10% चांस के लिए अपना पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करूं, ट्रेड करूं? क्या मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? हाँ, ये स्टॉक होने को तो डबल भी हो सकता है यहाँ से, पर वो 90% चांस है ना कि मेरा पैसा आधा हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। अच्छा, ये यूट्यूब पे अभी समवन इज टेलिंग देयर इज अ लिटिल ब्रेकआउट इन रिलायंस बट केम डाउन यस्टरडे। तो ठीक है, मैं अपना व्यू बता देता हूँ मेरा क्या है। हाँ, रिलायंस ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो इधर, इसने ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। एंड हाँ, कल की फॉल में इतनी सब्सटैंशियल नहीं बोलूंगा, बिकॉज दैट वाज न्यूज बेस्ड फॉल। अभी न्यूज क्या थी, सेबी ने अपने मार्जिन सिस्टम चेंज करे, तो एवरीवन हु हैड देयर पोजीशन ऑन फ्राइडे, उनको 25% मार्जिन पे उनकी पोजीशन बन रही थी। एंड अब वो मार्जिन हो गया 50%, कि यू नीड टू हैव 50% मार्जिन, तभी आप पोजीशन बना पाओगे। तो टू अवॉइड पेनल्टी, एवरीवन स्टार्टेड कटिंग देयर पोजीशन। सब जिन्होंने खरीदा था सबने बेचना शुरू करा, जिन्होंने बेचा था सबने खरीदना शुरू करा। एंड मार्केट इतना पॉजिटिव था कि लॉन्ग पोजीशंस वेर मोर सिग्निफिकेंट देन शॉर्ट पोजीशंस, इसलिए मार्केट टूटता गया। एंड जो शॉर्ट थे दे गॉट अ प्रॉफिट बुकिंग, तभी मार्केट हल्का ऊपर आता, देन स्टार्टेड फॉलिंग, देन ऊपर आता, देन स्टार्टेड फॉलिंग। तो हाँ, रिलायंस यहाँ से पॉजिटिव है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। एंड मेरे अकॉर्डिंग अभी टेक्निकली इट्स अ गुड बेट, कि हाँ हम इसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट, पर मेरे दैट्स अकॉर्डिंग टू मी। आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग बेट मत करना, अपनी रिसर्च करना पहले। ये अगर हम इसको लाइन चार्ट पे देखें क्लोजिंग पे, तो जस्ट अ सेकेंड, इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया है एंड क्लियर रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो हाँ, इट्स अ गुड बेट, ये बढ़ सकता है यहाँ से। मैं अगर इसके टारगेट बताऊं जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, ये 1840, 2040, तो यहाँ से 2400 का टारगेट है। मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, डाउन अप डाउन, एंड ये जो पैटर्न बना है इसके अकॉर्डिंग, इसकी हाइट, जो ये हाइट है इतना बढ़ेगा, 1850, 2250। सो 400 पॉइंट, यहाँ से 400 पॉइंट यानी 2400। बट लेट्स सी कि फॉल्स ब्रेकआउट है कि नहीं। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स, एनीवन हो, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो, एक बार वापस समझाओ। ओके, सो लाइक जैसे ये एक बहुत छोटा सा इंडिकेटर, सॉरी चार्टिंग पैटर्न था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। इसमें ब्रेकडाउन भी आएंगे, ब्रेकआउट भी आएंगे। अभी इसके आगे जो मैं बताऊंगा, जैसे एक ये ब्रेकडाउन था, रिलायंस की बात करूं, ये ब्रेकडाउन था यहाँ से, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट किया,
everyone would have started buying. आपने देखा होगा वॉल्यूम भी आई है, then it broke down this line, then इसके नीचे आ गया, this was a selling point. आप इसको यहाँ पे सेल करोगे, अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ तो 2200 पे आपने बाय करा होगा एंड 2100 पे आपने सेल करा होगा, तो आपने ये जो ड्रॉ डाउन है आपने नहीं फेस करा होता. यू कुड हैव बॉट इट एनीवेयर हियर, यू वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन देन बिफोर. तो ये एक सिंपल है, सबसे सिंपल है. मैं ये कहूँगा जो नए हैं इस फील्ड में वो इस पैटर्न के थ्रू, इस चार्टिंग टूल के थ्रू स्टार्ट करें अपनी ट्रेडिंग. और धीरे धीरे करके मैं नेक्स्ट वीडियोस में इचिमोको क्लाउड, एडीएक्स, आरएसआई, मैकडी, वॉल्यूम प्रोफाइल, एडवांस्ड वॉल्यूम स्टडी, देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, गान ट्रायंगल, ट्रायंगल पैटर्न, गान फैन एंड ऑल, ये सब धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने शेयर कर देना अपने रिलेटिव, अपने कॉन्टैक्ट्स में, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी. और इसी के साथ मैं ये अपना फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस का वेबिनार क्लोज करता हूँ. और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.